सो हेलो एवरीवन। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ठीक है, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਰੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਫੈਡਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ठीक है, सो ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ठीक है, सो एंड ਵਿੱਚ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਸਰ। ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਤੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟਰੀ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। यानी कि ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 50 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮੈंने ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰ। ਫਾਈਨ। तो मैं ऐसी ये गल कोई हवा च नहीं बोल रहे कि बिल्कुल नहीं है। हुण तक गल करांगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस भी देवांगे अमेरिका दी जिथे विच डिस्कस किया गया और जजमेंट दी गई सी सर कि कोई भी स्टेट बाहर नहीं निकल सकती सर। ठीक है, सो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ड यूज किया गया इंडिया इज ਉਹ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਾਈਨ। ਸੋ now the US is used the classical coming together federation sir formed। ठीक है, सारे ਜਿਹੜੇ states ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ coming together federation ਸਰ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ 13 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, no doubt in that sir। So federation formed by an agreement among the original 13 sovereign states। तो उस समय 13 sovereign states इकट्ठे होके एक मुल्क बनाते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस समय एक एग्रीमेंट होता है सर। ठीक है, उस तो बाद however the states do not have the right to secede from the union sir। तो पर यूनियन चो बाहर नहीं जा सकते सर। अमेरिका एक शास्त्रीय क्लासिकल इकट्ठे आना कमिंग टुगेदर वाली फेडरेशन है जो मूल 13 ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚ 13 ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ठीक है, इकट्ठे मिलके, ना कि ये लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी, सो उत्थे ये गल लिखी हुई है वी द पीपल नॉट वी द स्टेट्स। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान की जो वर्डिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਵੀ ਦ ਸਟੇਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। This signifies that the union was created by the people of the entire nation। तो ये ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। Not just as a temporary contract। ਕੋਈ temporary contract ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ treaty ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ between the sovereign state governments। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ once the state joins the union it becomes the part of the indissoluble bond sir। अगर एक बार कोई यूनियन का पार्ट बन जाता है उस तो बाद डिसॉल्व नहीं हो सकता सर। it becomes a part of the
ਇਨਡਿਸੋਲੂਬਲ ਬੌਂਡ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੋਈ ਦਾ ਪੀਪਲ ਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ। It was a contract. It was not even a contract. It was like coming together, making a federal nation, sir. Fine. So by the people themselves. ठीक है, लोगों ने इकट्ठे मिलकर बनाया। दूसरा, इस तो अलावा एक यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल सुप्रीम कोर्ट दी एक जजमेंट है सर, जिन्हों हर किते कोर्ट किया जाता है इहदे लई सर। तो उत्तरी सुप्रीम कोर्ट दी जजमेंट है, ऐसे कोई हवा च गल नहीं कर रहे इहदे लई सर। तो सुप्रीम कोर्ट दी जजमेंट ने एक खुद गल कही है सर। फाइन, जो कि पूरे देश लागू होती है। So the question of secession was legally settled. So ये कानूनन तौर पे इस गल ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1861 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1865 ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ। ਸੋ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਟੈਕਸਾਸ ਬਨਾਮ वर्सेस ਵਾਈਟ। ਟੈਕਸਾਸ ਵਰਸਸ ਵਾਈਟ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਟਲੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਆਲ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਲੁਕਸ ਇਨਟੂ ਅ ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰ, ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਦ ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ। यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टेबल है, स्टेट्स भी इंडिस्ट्रक्टेबल है। ये लाइन यूज की गई सी अमेरिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर, यानी कि ना तो यूनियन तोड़िया जा सकता है ना ही स्टेट्स तोड़िया जा सकते हैं। साडे देश च उल्ट है, साडे इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है सर, पर डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स ने। किसी मर्जी स्टेट नूं चाहे दो हिस्सों च वंड सकदी है केंद्र, बिहार नूं बंटवारा कर देगी झारखंड दे विच, उत्तराखंड निकलेगा यूपी चो सर, हरियाणा हिमाचल निकलेगा पंजाब चो सर। कदे मर्जी किने ऑल्टर की जा सकदियां ने बाउंड्रीज। आर्टिकल 3 पावर दिंदा है सर केंद्र सरकार नूं सर, मता पेश करके लोक सभा दे विच बाउंड्रीज चेंज कर सकदियां ने, यानी कि जिन्हों असीं बोलदे हां स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल ने, स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल ने इंडिया च। पर अमरीका दे विच जिहड़ी उत्थे दी यूनियन है सर, वो स्टेट्स दी बाउंड्री चेंज नहीं कर सकदी। गल इन्नी है सर, ना ही केंद्र चेंज हो सकता, ना स्टेट्स चेंज हो सकते हैं। केंद्र भी इंडिस्ट्रक्टेबल है, यू कने स्टेट्स भी इंडिस्ट्रक्टेबल ने सर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इन द 1869 केस का नाम हैगा टेक्सास वर्सेस वाइट, केस का नाम हैगा टेक्सास वर्सेस वाइट सर। फाइन, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिंदी है, द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल इट्स प्रोविजंस लुक्स इनटू अ, तो सारियां प्रावधान मद्देनजर रखते हुए, ठीक है जी, संविधान अपने सारे प्रबंधों विच एक अविनाशी सर, ना टुटण वाला यूनियन की कल्पना करता है, जो अविनाशी राज्यों तो बनी है सर। तो यूनियन भी अविनाशी है सर, और जो राज ने वो भी अविनाशी ने सर। यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टेबल है, जो स्टेट्स हैं वो भी इंडिस्ट्रक्टेबल ने सर। फाइन, सो दिस मींस दैट व्हाइल द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ यूएस स्टेट्स कैन नॉट बी चेंज विदाउट देयर कंसेंट, ठीक है। तो जो यूएस दे विच स्टेट्स दी बाउंड्री है उन्हां दी मर्जी बिना चेंज नहीं की जा सकती, बस इन्ना की है सर। फाइन, कोई ये नहीं दो स्टेट्स प्लस करती हैं माइनस करती हैं, एक दा दो करता है या दो एक करता है, ऐसा नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स सर। पॉइंट इज दिस, ठीक है, अनलाइक इन इंडिया। पर इंडिया च इदां नहीं होंदा, इंडिया च किया जा सकता है, केंद्र को पावर हैगी सर। फाइन, तो कॉमा द स्टेट्स देमसेल्व्स कैन नॉट लीव द यूनियन सर, पर वो इंडिस्ट्रक्टेबल ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सर, स्टेट्स कैन नॉट लीव द यूनियन सर। उस तो बाद कल स्टूडेंट मैनूं कह रहा सीगा सर वो फलाने च उत्थे विद्रोह होया सी जी, उत्थे धरना प्रदर्शन होया सी जी, उत्थे ऐ कहंदे सी कि अड्ड होना है सर। वो हुंदा रहिंदा है, वो सारे देशां दी गल है। कैनेडा च भी ऐसे कई धरने प्रदर्शन होंदे रहिंदे ने, ठीक है ना। ते उठण तो इंडिया च उठ खड़े होंदे ने सर कि असीं अड्ड हो जांगे जी, हो जांगे वाह हो जांगे। अमेरिका च होंदे रहिंदे ने। गल कर रहे हैं लीगल एस्पैक्ट दी सर, गल कर रहे हैं संविधान दी कि संविधान अलाउ करता है। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो सर। फाइन, उस तो बाद इसका अर्थ यह है कि सर ਜਦੋਂ कि अमरीकी राज्यां दीयां अंदरूनी सीमावां उन्हां दीयां सहमति तो बिना नहीं बदलियां जा सकदियां, तो जिहड़ी स्टेट्स दी परमिशन तो बिना उसकी बाउंड्री ऑल्टर नहीं की जा सकती सर, उसकी सीमा चेंज नहीं की जा सकती। सो भारत दे उल्ट सर, भारत च की जा सकती है ना। सो राज खुद यूनियन नूं नहीं छड्ड सकते सर। फाइन,
ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਆਫ ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰ, ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਆਫ ਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ। ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਲਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਸਰ। फाइन। उस तो बाद रीजन की है सर, इट इज अ रिजल्ट ऑफ, हाँ हिस्टोरिकली देखिए इतिहासक तौर पे एक एग्रीमेंट है, देखने को लगता पढ़न को लगता थ्योरेटिकल तौर पे, क्योंकि एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट तोड़िया जा सकता है। इसलिए कदे कदे स्टूडेंट्स को लिखा पै जाता है कि उत्थे दी स्टेट शायद एग्रीमेंट तोड़ के बाहर हो सकते हैं, उसका हिस्सा नहीं बन सकती है सर। फाइन, बट ऐसा नहीं है सर, बट लीगली इंटरप्रेटेड अगर असं लीगली इंटरप्रेट करिए, इट इज अ बॉन्ड ऑफ द पीपल सर, इट इज अ बॉन्ड ऑफ द पीपल नॉट ऑफ द स्टेट्स। ये जो संधि है ये लोगों दरमियान हुई है, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸਰ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸਰ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਸਰ। ठीक है जी। उस तो बाद क्या राइट टू सीड क्या हैगा सर, कि वक् होने का अधिकार हैगा सर? बिल्कुल भी नहीं है, ना अमेरिकी संविधान दे विच है ना ही इंडियन संविधान दे विच है सर। ठीक है, वक् होने का कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 सर, कौन देश अलाउ करूगा अपने स्टेट्स को अलग होने तो? कौन छड्डेगा अपनी बाउंड्री? है गल तो ये है सर। इंटरप्रिटेशन का बाद का पॉइंट है, वो तो सैकेंड स्टैप है सर। कोई भी सरकार होंगियां, कोई भी उस समय के लोग होंगे जो अपने संविधान लिख रहे होंगे, तो क्या ऐसा संविधान लिखेंगे भी कोई मर्जी जो छड़ के चला जाएगा सर? ठीक है, तो यूएसएसआर वाज अ क्लासिक केस, और मर्जी नाल आई सी, मर्जी नाल चले गए सर। उसका इतिहास होर तरीके दा सर। एनीहाउ, सो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की गल करते हैं सर, तो पार्लियामेंट कांग्रेस कैन नॉट चेंज द बाउंड्रीज विदाउट द स्टेट कंसेंट सर। उत्थे बाउंड्रीज चेंज नहीं की जा सकती, स्टेट्स दियां इत्थे कीतियां जा सकदियां ने, ईवन अगर स्टेट्स राजी ना होन सर। ठीक है जी, अगर आंध्रा राजी नहीं है फिर भी तेलंगाना बनाया गया सर। फाइन, अगर पार्लियामेंट मता पास कर देगी तो नवी स्टेट बन जाएगी। वे पावर हैगी यूनियन दे कोल स्टेट बाउंड्रीज ਨੂੰ अल्टर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ एज पर द आर्टिकल नंबर 3 सर, आर्टिकल नंबर 3 सर। फाइन, सो पार्लियामेंट कैन चेंज द स्टेट बाउंड्रीज नेम्स विदाउट द स्टेट कंसेंट। उस तो बाद सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी गल करिए, एस्टैब्लिश ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्ड लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स। की लिखा हुआ है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, दैट मींस इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल सर, यानी कि इसको तोड़िया नहीं जा सकता सर। while its units that is states are destructible sir, India therefore exhibits a quasi federal character with a strong unitary bias। ठीक है, तो साडा देश, तो मैं कल वो भी गल बोल रहा ਸੀ quasi federal है, that student was saying quasi federal नहीं है। ठीक है ना, हम गल करांगे सर इंडिया यूनिटरी क्यों है अगले पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, तो इस करके ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੈਡਰਲ नहीं है सर। ठीक है ना, जिस करके ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਰ। फाइन, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਆਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਸਟਰਕਚਰ ਚੱਲਦਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਤਰੀਕਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸਰ। ਫਾਈਨ, ਸੋ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਟਰਕਚਰ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਨਾਓ भारतीय संविधान राज्यां दा एक संघ अनुच्छेद 1 स्थापित करता है जो कि अविनाशी अनडिस्ट्रक्टेबल है, जो कि इसकी इकाइयां राज विनाशकारी डिस्ट्रक्टेबल हैं सर। इसलिए भारत एक मजबूत एकात्मक चुका है, तो यूनिटरी बायसनेस तो हैगी नो डाउट इन दैट, पर इस दे नाल नाल एक ये भी नहीं है कि फेडरल नहीं है, कुछ हद तक फेडरल भी है, जिन्होंने से बोलते हैं क्वासी फेडरल, यानी कि अर्धसंघी चरित्र प्रदर्शित करता है सर। फाइन, उस तो बाद कुछ होर डिफरेंसेस देखते हैं इंडिया ते अमेरिकन संविधान दे विच। इंडिया या अमेरिकन दी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये उत्थे दा पॉलिटिकल सिनेरियो जो साडे इत्थे पॉलिटिकल सिनेरियो, उन दोनों च अंतर की है सर? नाउ पहला सर, साडे इंडिया च केड़ी गवर्नमेंट है सर? पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। केड़ी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जेड़ा रियल एग्जीक्यूटिव वो कौन है? देश दा प्रधानमंत्री सर। और अमेरिका दे विच रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कित्थे लाई करदी है सर? कौन हुंदा मुखिया सर? प्रेसिडेंट सर।
ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਸਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੈਡ ਹੈ ਸਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਸਰ, पूरे पैरेलल हाई कोर्ट्स काम कर रहे हैं, ऊपर टॉप पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट। कौन है, सुप्रीम कोर्ट सर। इतना लिख लो लोअर कोर्ट्स। फाइन। जिन्हों से कह सकते हैं कि एक तरीके का पिरामिड बनता है, सब तो टॉप पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट सर। तो एक यूनिफाइड बनता है सर, एक सिंगल बनता है सर, ठीक है जी। सो कहने का मतलब की है, बोलते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सर। सो यूएसए हैज अ डुअल जुडिशरी सर। तो यूएसए विच की है, हर एक स्टेट दी अपनी कोर्ट है सर, अपनी सुप्रीम कोर्ट है सर। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੈਸੇ 50 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਰ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 52। ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਐਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਕਸਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਰ। तो टेक्निकली वैसे 50 स्टेट्स ने, 50 सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए ने, पर दो स्टेट्स से एक एक्स्ट्रा है सर। फाइन। तो यानी कि उत्ते 52 ने सर, प्लस एक उन्होंने पूरे देश लेवल ते जिन्हों से बोलते हैं फेडरल सुप्रीम कोर्ट, जिन्हों से की बोलते हैं फेडरल सुप्रीम कोर्ट सर। फाइन। एक होर दे विच बहुत अच्छा अंतर है जो समझण वाला है सर। साडे देश दे विच जो हाई कोर्ट की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट पलट सकती है, उत्थे इदां नहीं है। उत्थे ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸਰ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਸਰ, ਉਹ ਪਲਟ नहीं सकती सर। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सर? और साडे देश दे विच की है कि जिहड़ी इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वो नीचे दे सारे हाई कोर्ट दा फैसला पलट सकती है सर, और सुप्रीम कोर्ट दी जजमेंट सारे हाई कोर्ट से बाइंडिंग हुंदी है सर, उन्होंने मननी जरूरी हुंदी है सर। उत्थे इदां दा कंसेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू मैटर्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है देन फेडरल सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर सर, और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर तो इलावा कोई फॉरेन अफेयर्स है या कोई मतलब कि तुम मान के चलो कि अपना पूरे देश लेवल से कोई मुद्दा है सर, कोई वॉर या कुछ इस तरीके का कोई मुद्दा है सर, दैट्स इट। फाइन। या कोई फॉरेन ट्रीटी है, ऐसा कुछ। पर अगर तुम गल करो कोई पर्टिकुलर लॉ इंटरप्रेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई उत्थे स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देती कि वो पलट सकती है सुप्रीम कोर्ट, फेडरल सुप्रीम कोर्ट नहीं सर। कोई दो पार्टियां का आपसी डिस्प्यूट है सर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई उत्थे दी स्टेट दी कि वो पलटी जा सकती है, द आंसर इज नहीं सर, नो। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं? तो असं कह सकते हैं कि उत्थे डुअल कंसेप्ट है, उत्थे हर एक सुप्रीम कोर्ट अपने आप च है और फेडरल सुप्रीम कोर्ट अपने आप च है सर। फाइन। तो मोटा मोटा दोनों आपस से इंडिपेंडेंट ने, वो किसी के अधीन नहीं हैं सर, पहली गल। दूजा साडे इत्थे साडे यूनीफाइड है, एक ही है सर, ठीक है ना। जो केंद्र और टॉप ते है सर, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो नेशनल सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप ते है सर, ठीक है जी। केंद्र मीनस नेशनल सुप्रीम कोर्ट की गल कहने की कोशिश कर रहा है, केंद्र सरकार ना विच इंटरप्रेट कर लियो। उस तो बाद तो भारत विच एक सिंगल
एकीकृत न्यायपालिका है सर, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है बॉस। अमेरिका ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਸਰ, ਡੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰ। ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ। ਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਸਰ, कोर्ट ऑफ अपील, फाइन। बाकी लोअर कोर्ट्स ने सर, बाकी लोअर कोर्ट्स ने सर हर एक स्टेट दे विच। नेक्स्ट, सो इंडियन संविधान की गल करिए सर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सर, इट इज रिलेटिवली फ्लैक्सीबल सर, ठीक है ना। आर्टिकल 368 सानू दसदा है कि संविधान किद्दां अमेंड किया जा सकता है, पर अमरीकी संविधान की गल करिए, अमरीका संविधान नू अमेंड करना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी वेरी रिजिड सर, ठीक है जी। तो अगर दोनों आपसी कंपैरिजन करिए सर, साढ़े दस संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान ने जिवें स्टेट बाउंड्रीज ऑल्टर करनी है, सिंपल रेजोल्यूशन पास कराना, सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, दैट्स इट सर, ठीक है जी। गल करिए कुछ मेजॉरिटी, कुछ मत इस तरीके दे ने जो 2/3 नाल ने, ते कुछ इस तरीके दे ने जो 2/3 ने नाल मता चाहिए सानू पास होना, प्लस 50% ऑफ स्टेट्स दी अप्रूवल चाहिए है सर। पर अमेरिका दे विच संविधान पास कराना, अमेंड करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट सर, फाइन। सो representation in the upper house, राज्य सभा seats are allocated on the basis of population sir। राज्य सभा seats अगर साडे देश दी गल करिए on the basis of population है सर। जे पंजाब दी गल करिए, पंजाब दी कितनी सीटां ने राज्य सभा दे विच? 7 सीट्स ने सर। तो हर एक स्टेट दा वेरी करदा है सर, हर एक स्टेट दा वेरी करदा डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, यूजिंग 1971 सेंसस, यूजिंग टिल नाउ 1971 वाला सेंसस, उस दे अनुसार जो पॉपुलेशन दे आंकड़े ने, उस दे अनुसार पॉपुलेशन दे अनुसार सीट्स दा बंटवारा किया गया है सर। अमेरिका दे विच नहीं है सर। अमेरिका का जो अपर हाउस है, जो सैनेट है सर, उत्ते हर एक 50 स्टेट्स ने 2-2 बंदे चुन के आंदे ने, टोटल 100 बंदा चुन के आंदा सर। वो तो पॉपुलेशन के आधार पे नहीं होंदा सर, यानी कि दैट शोज कि उत्ते इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी स्टेट, दैट शोज कि इक्वल इंपॉर्टेंस टू, इक्वल शेयर, इक्वल आवाज जो पार्लियामेंट उठाई जा सकती है, इक्वल सर सबनों। साडे देश इदां नहीं है सर, साडे देश की है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सर। सो जो यूएस सैनेट की गल करिए सर, उत्ते इक्वल रिप्रेजेंटेशन है टू ईच एंड एवरी स्टेट सर। 2 सैनेटर चुन के आंदे ने सर हर एक स्टेट दे विच सर, फाइन। उस तो बाद सर, सो राज्य सभा दी सीटां दी आबादी दे आधार ते सर अलॉट कीतीआं जांदियां ने सर। अमेरिकी सैनेट हर एक राज नूं बराबर प्रतिनिधि दिंदी है, हर एक दे विच किन्ने सैनेटर चुन के आंदे ने? 2 सैनेटर चुन के आंदे ने सर, ठीक है। अपने वाली लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा सीट्स कितनी है, वैसे डेप्थ से टॉपिक करांगे, टॉपिक पार्लियामेंट आएगा, लोकसभा राज्यसभा डिटेल्स देख लांगे सर। हजे खैर उरे अमेरिका की गल चल रहा है तो मैंने अमेरिका का वर्णन देता है सर, फाइन। सो अमेरिका की गल करिए तो सैनेट में ऑलरेडी दस चुके हैं कि टोटल 100 स्ट्रेंथ है। जो इज अ लोअर हाउस है जिन्होंने बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, अपर हाउस में बोलते हैं सैनेट। अपर हाउस दे विच है 100 बंदे, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है 435 बंदे, 435 बंदे। वैसे 6 बंदे होर भी चुन के आंदे ने, नॉमिनेट होंदे ने सर। वैसे 6 बंदे होर भी चुन के आंदे ने। अमेरिका के कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स ने सर, दो तीन एशिया पैसिफिक दे विच ने सर। साडे इंडिया दे नाल इत्थे उत्थे वो अमेरिकन कंट्रोल दे विच ने, उत्थों एक बंदा चुन के आंदा है सर, ठीक है। सो कहने का मतलब की है 6 बंदे वैसे होर भी चुन के आंदे ने, पर उन्हां कोल वोट पाउण दा अधिकार नहीं हुंदा, नॉमिनेटेड होंदे ने सर। इस करके जो सीट्स फिल होंदियां ने, एलोकेटेड होंदियां ने, जो जित के आई जांदे ने, जो नॉमिनेशन नहीं हैं, जिहदी गल कर रहे हैं, जिहदी इलेक्शन होंदी है, वो टोटल किन्ने ने? 435। किन्ने ने टोटल? 435 सर। तो टोटल किन्ने मैंबर्स हो गए उन्हां दे पार्लियामेंट दे विच, जिहनूं असीं बोलदे हां कांग्रेस। तो कांग्रेस दे 2 हाउसेस ने उत्थे सर। उपरले हाउस का नाम की है? हाउस ऑफ, उपरले हाउस का नाम की है? हाउस ऑफ सेनेट। क्या नाम है? सेनेट सर। तो निचले हाउस का नाम की है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है जी। सो जो 435 बंदियां दा हैगा, ये 1929 तो फिक्स्ड है। 1929 तो बाद 435 बंदे ने सर, ठीक है जी। तो बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन सर, उस समय से जो कितना सीगा अपॉर्शन अमंग द स्टेट्स एट दैट टाइम सर। तो टोटल कितना हो गया? 100 प्लस 435 यानी कि 535 हो गए सर, फाइन। सो आई डू होप तुहानू चीज़ां समझ आईयां होणगियां कुछ कि भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान का बेसिक अंतर क्या है सर, मोटा मोटा अंतर क्या है सर, ठीक है। तो कई बच्चों को मिसकनसैप्शन रहिंदा है कि जो भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स हैं वो नहीं छड्ड सकते भारत नूं, अते पर अमेरिका दे विच इस तो उल्ट अमेरिका छड्डिया जा सकता है, जो कि गलत है सर। नहीं छड्डिया जा सकता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संविधान दे विच साफ-साफ लिखिया होया, पहला पॉइंट। दूसरा उत्थे दी सुप्रीम कोर्ट दी जजमेंट है सर, दूसरा उत्थे सुप्रीम कोर्ट दी जजमेंट है सर, फाइन। उस तो बड़ी गल कोई नहीं है सर, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता सर।
नाउ द नेक्स्ट गल करते हैं सर कि साडा भारतीय संविधान सर कि फेडरल है। द आंसर इज यस। तो केड़े-केड़े एंगल तो फेडरल है सो उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं सर। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो साडे 7 शेड्यूल दे विच ऑलरेडी पावर्स ਨੂੰ डिस्ट्रीब्यूट ਕੀਤਾ ਗਿਆ तीन लिस्ट ਵਿੱਚ सर। तो साफ-साफ एक स्टेट लिस्ट बनाई गई है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ पावर्स स्टेट्स ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ स्टेट्स ਆਪਣੇ इंडिपेंडेंटली ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ। तो स्टेट्स अपने उन्होंने मुद्दों ते इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेंगे जिस ਨੂੰ करके ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ स्टेट्स इंडिपेंडेंट ਹਨ फ्रॉम दैट पॉइंट फ्रॉम दैट एंगल सर। फाइन ਜਿਹੜੇ मैटर्स शेड्यूल 7 ਦੇ स्टेट लिस्ट ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰ। ठीक है जी। सो पहला पॉइंट सो पावर्स आर ऑलरेडी क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स थ्रू द यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट इन विच शेड्यूल सर ਕਿਹੜੇ शेड्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ ਇਹ इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर। ठीक है जी। तो प्लीज ये चीजें ध्यान नाल तुसीं लिख लो याद कर लो। शेड्यूल बहुत पूछते हैं पेपर दे विच ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम बोल चुके हैं क्लास सुन के तुहानूं वैसे याद हो गया ना। शेड्यूल 7 सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कित्थे लिखा गया शेड्यूल 7 दे विच। उस तो बाद 7वीं अनुसूची दे विच यूनियन सूची राज सूची ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ सूची ਰਾਹੀਂ यूनियन ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਰ। ठीक है जी। उस तो बाद नाउ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ यूनियन ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट किद्दां चलेगी पार्ट 5 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेट गवर्नमेंट किद्दां चलेगी पार्ट 6 ਦੇ ਵਿੱਚ साफ-साफ क्लियरली मेंशन है पूरी संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। तो ये रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स डिफाइन है सर। स्टेट्स का अपना रोल डिफाइन है यूनियन का अपना रोल डिफाइन है सर। फाइन। तो कहने का मतलब यह है कि उदाहरण तौर पर हुण तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ नहीं आई तो केंद्र ये थोड़ी कहोगी भी साडी सरकार चुन के नहीं उस हिसाब से राष्ट्र प्रशासन लगा रहे हैं सर। जनता दा फरमान सिर मत्थे जनता दा फरमान सिर मत्थे जिन्ना मर्जी संविधान दे विच लिख लो गवर्नमेंट में इनवाइट द रूलिंग पार्टी ये वो तो मेन ही है मस्ट ही है उन्होंने बुलाना ही पैना है गवर्नर ਨੂੰ जो ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ 100 ਉਹੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕਿ ਨਾ ਐਤਕੀ 100 ਨਾਚਗਾ ਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਰਹੇ हैं ਸਰ। नो ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਸਰ। फाइन क्यों क्योंकि क्या होया सर इलेक्शन हुई है सर जनता ने चुन के भेजा सर। तो जो विजय की पार्टी है तो उन्होंने बुलाना तो बंद है गल खत्म। संविधान के जिन्ना मर्जी इंटरप्रेट करी चलो गवर्नमेंट में इनवाइट उत्थे वर्ड में लिखा हुआ है सर लिखा रहे में पर मस्ट है सर। इनू इंटरप्रेट लीगली इंटरप्रेट कितना करना इनू पढ़ना कितना इनू मस्ट ही पढ़ना इनू में नहीं पढ़ना सर। लिखा रहे अगर में लिखा हुआ है सर पहली गल। उदाहरण तौर पर दूसरा एग्जाम्पल सर उदाहरण तौर पर वैस्ट बंगाल की जो पुरानी मुख्यमंत्री सी ममता बनर्जी कहती मैं इस्तीफा नहीं देंदी ना दे तेरे दिन ना दिन की हो जाऊगा। संविधान दे विच सारियां सिचुएशंस क्लियरली स्पष्ट ने सर। ठीक है जी। कुछ नहीं है गवर्नर ने तेरी सरकार बर्खास्त कर देनी है अगर तुम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाओगे तो थोड़ा केस टिकना ही नहीं टिक सकेंगे सर बिकॉज इलेक्शन हो गया। ठीक है इट इज एज सिंपल एज दैट सर। ठीक है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे पार्लियामेंट है चाहे कोई देश का नागरिक है चाहे कोई संस्था है वी ऑल आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर। तो थोड़े इस्तीफा देन ना देना तो कुछ नहीं होंदा इस तो वधिया कि रिस्पेक्टफुली दे जाते जाके सर। जिवें इन्होंने किया हुण अपना की नाम है जो डीएमके के मुखिया सीगे स्टालिन साहब उन्होंने फटाफट इस्तीफा देता उन्होंने सौं चुक ली वो ईवन के आपस घरे जाके किसी ने फोटो सेशन भी करा रहे थे। हुण मौजूदा मुख्यमंत्री पुराना मुख्यमंत्री आपस फोटो सेशन भी करा रहे थे। तो गल यह है भी कोई पर्सनल थोड़ी है किसी की कुछ तुसीं भी अपनी स्टेट लिए काम करना असीं भी अपनी स्टेट लिए काम करना जनता ने जिन्होंने वोट पाता वो कर लेगा सर उसमें क्या दिक्कत है। फाइन पर इन्ना सौखा नहीं होंदा प्रैक्टिकली सर। पावर का नशा है ना तो कदे कदे सिर चढ़ के बोलता है सर और कुछ नहीं है। उन्होंने सोचा नहीं सी कदे हार हो जाएगी साडे सर पर एनी हाउ जनता है जनता कितने छोड़ दी है सर। सो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है सर संविधान दे विच क्लीयरली डिफाइन है केंद्र दा रोल क्लीयरली डिफाइन है स्टेट दा रोल वक्री वक्री सिचुएशंस दे विच सब कुछ क्लीयरली डिफाइन है सर। फाइन तो यानी कि स्टेट्स एग्जिस्ट कर दिया ने उन्हें दी कुछ हद तक पावर्स काफी हद तक पावर्स एग्जिस्ट कर दिया नहीं सर। फाइन उस तो बाद तो बोथ यूनियन एंड स्टेट कुछ हद तक पावर्स नहीं है स्टेट दी ओके जाके देख लांगे चाहे वो इमरजेंसी का केस है। ठीक है ना चाहे कोई फॉरेन वॉर छिड़ी हुई है किसी बाहरले मुल्क नाल सर तो उस तरीके के देश वो देख लेंगे सर। अदरवाइज स्टेट्स आर वेरी मच इंडिपेंडेंट सर। सो बट बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट आर बाउंड टू द फंक्शन स्ट्रिक्टली चाहे केंद्र सरकार है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है सर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के दायरे च रह के ही बीजेपी और इन्हें अपना टीवी की दे पार्टी ने विजय दी पार्टी ने अलग अलग इलेक्शन लड़ी ऊपर जम के आरोप प्रत्यारोप होया सर। ठीक है जी। जमी इलेक्शन जित के आया विजय उन्हें आंदे सर बयान दिता भी इलेक्शन खत्म होगी इलेक्शन मोड से बाहर आओ
ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਓਕੇ ਸਰ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਬੰਗਾਲ ਸਰ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ, 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਰ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਓਗੇ ਸਰ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਡਿਫਾਈਨ ਨੇ ਸਰ ਟੋਟਲੀ ਸਰ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਆਲਟਰ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪਾਵਰਸ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਸਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਸਿੰਗਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ। So amendments affecting the federal structure require the ratification by at least half of the state legislature sir। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਮੈਟਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਦਾ ਟੈਕਸਿਸ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੈਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਕਟਰਾਈ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50% ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 50% ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50% ਸਟੇਟਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਟਿਕੂਗਾ ਸਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੋਗੇ ਸਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਲਈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 2007-8 ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਪੇਸ਼ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਇਟ ਵਾਸ ਸੱਚ ਅ ਹਿਊਜ ਟਾਸਕ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਨ। ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਰ,
तो कुल मिला के कहने का मतलब की है कि तुम नहीं कर सकते कि 2/3 बहुमत सॉरी हाफ ऑफ द स्टेट्स तो मता पास नहीं कराया गया। 2/3 बहुमत तो करना नहीं कराना लोक सभा राज्य सभा चो, वो तो पहला स्टेप है सर। उस तो बाद कितों पास करवाना पड़ेगा, 50% ऑफ स्टेट्स तो पास करवाना पड़ेगा सर। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वैसे आप आईएएस भी गल करते हैं, वैसे जो आईएएस की भर्ती होंगी, यूपीएससी की भर्ती होंगी, वो केंद्र वालों की जाती है। केंद्र भी इदा नहीं करता, केंद्र मैरिट के आधार पर करता। केंद्र ने एक संस्थान बनाया है यूपीएससी सर, ठीक है। वो संस्थान एक पर्टिकुलर सिलेबस के दायरे पेपर कंडक्ट करता है सर, उसकी प्रक्रिया है सर। वो कंडक्ट करके जो मैरिट के आधार पर बच्चे निकलते हैं सर, उन्होंने सिलेक्ट किया जाता है, उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, फाइन। तो ये सारा कौन करता है, सारा कुछ यूपीएससी करता है ना। सो यूपीएससी को फंड कौन करता है, तो अल्टीमेटली केंद्र फंड करता है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है सर, पहला पॉइंट। दूसरी गल, डिप्लॉयमेंट कितनी होंगी है, स्टेट्स लेवल ते होंगी है। डिप्लॉयमेंट कितनी होंगी है, स्टेट लेवल ते होंगी है। पर फिर भी कितना कितने पावर अल्टीमेटली केंद्र को ही होंगी है। उन्होंने अपॉइंट करना और रिमूव करने की पावर केंद्र को है, स्टेट रिमूव नहीं कर सकती सर। स्टेट सिर्फ बदल सकती है सर, उन्होंने रिमूव केवल केंद्र कर सकती है। वो भी कुछ बहुत गंभीर मामले हों सर, इन्ना सौखा नहीं है कि आईएएस बदलना। उन्होंने खासकर उन्होंने जॉब को कहना प्रोटेक्ट किया हुआ है किसी कानून के नहीं, संविधान के किस प्रोटेक्ट किया गया, उन्होंने संविधान प्रोटेक्ट किया गया उन्होंने जॉब को सर, फाइन। इन्हों स्टील बॉडी बोलिया जाता है, देश की स्टील बॉडी ने सर, ये फाइन। सब तो वध पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स होंगे ने सर साडे देश च। व्हाट आई फील दे आर द परमानेंट सरकार। पोलिटिकल पार्टियों के नाम चेंज होंगे रहते हैं, आते हैं जाते रहते हैं सर। जेड़ा कोई चीफ सैकटरी है, सैकटरी जिस अहुदे पर बैठा है, तो देख लो 15-20 साल उस अहुदे पर बैठा है सर, 25-30 साल सर। तो वो अल्टीमेटली रीढ़ की हड्डी है सरकार की सर। सो कहने का मतलब कि हाँ, पर की जो फॉर एग्जाम्पल चीफ सैकटरी ऑफ पंजाब है, कि उन्होंने केंद्र बदल सकती है, कितने होर डिप्यूट कर सकती है, हाँ कर सकती है। अजकल एक आईपीएस सुर्खियां च नहीं है, बंगाल चों 5 साल डेपुटेशन से भेजता। जो इलैक्शन हो रही सी उत्थे कुछ एक एरिया के काफी रौला रप्पा पा रहे थे, उन्हें जाके क्या नहीं सीगा भी जे उरे अगर अनुशासन तुसीं तोड़िया तो फिर मेरे तो बुरा कोई नहीं उरे। तो फिर अपने आईपीएस ने पावर दिखा रहे थे खड़ा होके भी अगर तुसीं इत्थे अनुशासन तोड़िया तो मेरे तो बुरा कोई नहीं। फिर तो बड़ा सुर्खियां च आया वो वीडियो सर, बिफोर बंगाल इलैक्शन सर। तो सरकार आई तो उन्होंने 5 साल उस आईपीएस उत्थे डिप्यूट करता बंगाल दे विच। सो एनी हाउ कहने का मतलब की है सर, अल्टीमेटली कितने ना कितने जेडे कैडर्स ने सर, आईएएस कैडर, आईपीएस कैडर, जो यूपीएससी कैडर पोस्ट ने सर। सो कहने का मतलब की है, इन्हों कितना कितने केंद्र ट्रांसफर कर सकता है, नो डाउट इन दैट। डिप्यूट कर सकता है, नो डाउट इन दैट सर, फाइन। सो आगे मूव करते हैं। संगठन को प्रभावित करने वाली सौदा को घट्टो घट अद्धियां राज्य विधानसभा सभावां द्वारा रेटिफिकेशन मतलब पुष्टि है ना, अप्रूवल। रेटिफिकेशन मीनस पुष्टि सर, ठीक है जी, दी लोड़ होंदी है सर। उस तो बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी सर। दूसरी गल की है, फेडरेशन है। असं ये नहीं कह रहे कि यार हाँ देखो, असं ये नहीं कह रहे भी हाई कोर्ट किसी के अधीन है। हाई कोर्ट अपने आप पूरी पावरफुल है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इदा बोलना बहुत गलत है सर। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, वो तो ऐ फीलिंग लग जाती है इंप्लॉयर इंप्लॉय के रिलेशन वाली भी जो इंप्लॉयर कहेगा वही करना पड़ेगा सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ मैटर्स से ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट कह देती है भी जजमेंट नहीं देनी तो नहीं देते, पर अदरवाइज रूटीन मैटर्स दे विच सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती हाई कोर्ट सर। हाई कोर्ट जिद्दां फंक्शन करना चाहते फंक्शन करे, जो जजमेंट देना चाहते हैं जजमेंट देवे। सुप्रीम कोर्ट उन्हें नहीं पसंद आऊगी, सुप्रीम कोर्ट ओवररूल कर दोगे सर। एंड डिफरेंट मैटर्स से डिफरेंट जजमेंट्स आंदियां ने डिफरेंट हाई कोर्ट्स दी सर। एक हाई कोर्ट नूं दूसरे हाई कोर्ट का कोई ताकत नहीं सर, वो भी इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट है सर, ठीक है सर। वो भी तुसीं मान के चलो भी कोर्ट ऑफ अपील है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ अपील है सर, दोनों केस फाइल किया जा सकता है। संविधान ने रिट पावर इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को भी दी है, हाई कोर्ट को भी दी है सर, फाइन। सो अल्टीमेटली दे ऑल आर ऑन इल ऑल। जिवें ਅਸੀਂ बोलते हैं ना, जिवें चिकने 3 इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने, एक तो होंगे चीफ इलैक्शन कमिश्नर सर, एक 2 इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने सर। ਅਸੀਂ कदे नहीं इदा बोलते कि दोनों के अधीन ने सर, क्योंकि ये चीफ है, ਅਸੀਂ कदे नहीं इदा बोलते सर। ये तीने अपने आप च पावरफुल ने सर। इन्हां दी नियुक्ति राष्ट्रपति ऑफ इंडिया द्वारा होंदी है। ये नहीं है भी चीफ उसके काम तो पसंद नहीं है इलेक्शन कमीशन हटा देगा, इट कैन नॉट बी लाइक दैट सर, फाइन। सो इट इज नॉट दैट केस। सेम इज अ केस ऑफ की इंडिपेंडेंट जुडिशरी है सर, पर हाँ इंटीग्रेटेड रखा गया उसनों, की किया गया उसनों एक सूत्र च पिरोया गया सर। सो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप सर। सो हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यार उदाहरण तौर पर यूनिवर्सिटीज दी डे टू डे वर्किंग दे विच कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होंदी है,
ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਰਕਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਸਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀਸੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਪੀਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਸਰ। ਅਸਲ ਕਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਫਾਈਨ, ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਸਰ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟੌਪ ਕਮਾਂਡਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਪਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰ। ਆਰਮੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਖੁਦ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੈਨ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਪਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਾਈਨ, ਸੋ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਦਿਸ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ से इंटरफेयर नहीं करती सर। हाई कोर्ट अपने आप इंडिपेंडेंटली रन होती है सर, अनलेस एंड अनटिल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है सर, कोई इस तरीके का केस है जिथे जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट लगता है कि ओवररूल करनी बनती है, देन सुप्रीम कोर्ट कुड इंटरफेयर सर। फाइन, सो इट इज एज सिंपल एज दैट। सो एक्ट नाउ द कहने का मतलब की है, पर हाँ फाइनली क्या सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है? द आंसर इज यस। सो इट्स अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गार्जियन ऑफ द ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਐਮਸੀਕਿਊ ਹੈ, which the following is known as a custodian of constitution sir। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਤ ਦਾਇਿਤਵ ਹੈ ਸਰ। तो नीचे ऑप्शन आंदा प्रेसिडेंट, नीचे ऑप्शन आंदा सरकार, अगला ऑप्शन आंदा पार्लियामेंट, अगला ऑप्शन क्रिएट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। आंसर आएगा सुप्रीम कोर्ट सर। तो कई लोग पार्लियामेंट टिक लगाए जाते हैं, कई लोग राष्ट्रपति पर टिक लगाए जाते हैं सर, कई लोग सरकार के ऊपर टिक लगाए जाते हैं सर। तो साफ साफ लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट इज अ कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर। फाइन, उस तो बाद ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਈਵਨ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਵਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰ। यूनियन गवर्नमेंट कितना काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कितना काम करेगी, ये क्लियरली डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। तो उस एंगल तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀ ਸਰ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ यूनिटरी कंट्री एज वेल सर। फाइन, फिर बाद कंक्लूड करांगे कि ना ही इंडिया फुली फेडरल है ना ही फुली यूनिटरी है सर। फिर ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀ ਫੈਡਰਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਿਟਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ स्टेट ਦੀ अलग ਤੋਂ सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और पूरे देश की अलग ਤੋਂ सिटीजनशिप मिलेगी सर। हमारे देश में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है सर। सो इट प्रोवाइड्स ओनली सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, स्टेट्स को इतनी पावर नहीं है कि वो सिटीजनशिप अलॉट करेगी सर। सिटीजनशिप अलॉट करने ਦਾ कहना ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਵਰ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਸਰ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਦਾ ਸਰ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਅਗਰ 20 25 30 40 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਸਰ, ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ SIR ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰ, ਉਹ
ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਸਰ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰ। ਜੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਹੈ ਸਰ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਰ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਸਰ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ। ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ। फाइन, तो सिटीजनशिप देने का जो अधिकार हो एकमात्र अधिकार किहदे कोल है, वो केंद्र कोल है सर, ना कि किसी स्टेट कोल है सर। तो इस एंगल तो कह सकते हैं कि भारतीय जो केंद्र है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपैरिजन टू स्टेट्स, ठीक है ना। इन्हां कुछ पॉइंट्स तो बाद जाके ਅਸੀਂ कंक्लूड करांगे कि वाकई ਜਿਹੜਾ केंद्र है वो काफी पावरफुल है सर, ठीक है। सो आम फेडरेशन के उल्ट भारत सिर्फ सिंगल नागरिकता, सिर्फ भारतीय नागरिकता प्रदान करता है सर। उस तो इलावा होर भी है, साडे इत्थे इदां नहीं है भी तुसी इंडियन सिटीजन भी हो साइड बाय साइड तुसी किसी होर दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, नो, तुहानू गिव अप करनी पेगी, तुहानू गिव अप करनी पेगी इफ यू वांट टू टेक द सिटीजनशिप ऑफ सम अनदर कंट्री सर। अगर किसी होर देश से कुछ सिटीजनशिप लेना चाहते हो, शायद तुहाडे बड़े सारे यार दोस्त कैनेडा गए होणगे, हुण तो उत्थे जो पीआर हुंदे हुंदे सिटीजनशिप ਲਈ एलिजिबल हो गए होणगे, और काफियां ने लित्ती नहीं होएगी सर। मेरे कई ऐसे दोस्त ने जिन्होंने सिटीजनशिप ਲਈ नहीं सर, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼। तो फिर इंडिया की सिटीजनशिप साने अगर ड्रॉप करती कैनेडा की मिल तो जाएगी तो ਕੱਲ ਨੂੰ फिर वापस आने दिक्कत आएगी सर। तो ਅਸੀਂ भारतीय नागरिकता खोना नहीं चाहते, सानू उत्ते पीआर ते सिटीजनशिप कोई सानू फर्क बहुता फील ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, एक्सेप्ट राइट टू वोट। अदरवाइज बाकी जो सहूलतां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ बतौर पीआर, जब तक ਅਸੀਂ रही जा रहे हैं सर। तो उन्होंने कहना है, तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब की है, यू कैन नॉट हैव द सिटीजनशिप ऑफ बोथ कंट्रीज टुगेदर सर। अगर तुहानू एक सिटीजनशिप किसी दूसरे देश की चाहिए है, देन यू हैव टू गिव अप द सिटीजनशिप ऑफ द आर इंडिया सर। साडे देश की सिटीजनशिप तुहानू गिव अप करनी पड़ेगी सर। उस तो बाद डोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो केवल और केवल किसने यूनियन लिस्ट का पार्ट है सर। चाहे वो डिफेंस का मैटर है, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स है, चाहे वो इकॉनमी है, बैंकिंग है सर, चाहे वो न्यूक्लियर है सर, चाहे वो रेलवेज है सर, ये सब कितने लिखा गया, यूनियन लिस्ट में लिखा गया। कितने लिखा गया है, यूनियन लिस्ट में लिखा गया है सर। फाइन। उस तो बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन द यूनियन लिस्ट, गिविंग द सेंटर द प्रीडोमिनेंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सर। जिस तो साफ साफ समझ आता है कि सानू कि ਜਿਹੜੇ नाजुक विषय ने है, ਜਿਹੜੇ मेन विषय ने वो अल्टीमेटली किहदे कंट्रोल चाहते हैं, सेंटर के कंट्रोल चाहते हैं सर। जिस करके असं कह सकते हैं कि सेंटर एज कंपैरिजन टू स्टेट ज्यादा पावरफुल है सर। चाहे वो डिफेंस का मैटर है, चाहे वो रेलवे का मैटर है, चाहे इकॉनमी बैंकिंग का हैगा, चाहे फॉरेन अफेयर्स है, चाहे करेंसी मैनेजमेंट है सर, ठीक है जी, चाहे न्यूक्लियर है। फाइन। सो इस सारे पॉइंट्स तो असीं जज कर सकते हैं कि जाहिर जी गल है कि केंद्र ज्यादा पावरफुल है एज कंपैरिजन टू इंडियन स्टेट्स, एज कंपैरिजन टू इंडियन स्टेट्स। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? So the next point is concurrent list legislation sir. So on concurrent list subjects the parliament's law prevails over the any conflicting state law. Concurrent list ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਟਰਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ in the case of conflict who will prevail? In the case of conflict who will prevail? Center will prevail sir। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। फाइन सर। केंद्र ने कानून बनाता, स्टेट ने 2 साल बाद, साल बाद, 6 महीने बाद उस कानून ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ ਸਰ। ਕਿਹਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ? ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਐਂਡੀਸ਼ਨ ਲੇਟੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸਰ। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? पहला पॉइंट। दूजा पॉइंट सर, अगर स्टेट बहुत सीरियस है, वो कहती कि उस तरीके का जो कानून है साडे देश स्टेट च होना चाहिए सर। उदाहरण तौर पर साडे देश दे विच जो लड़कियां दी मैरिज लिमिट है वो 18 ईयर्स है। अगर कोई स्टेट इसनू 16 साल करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल उसने कानून पारित करता, पर लागू तो होना नहीं। अगर कोई ये तर्क देंदा भी नहीं साडे उरे ट्राइबल एरिया ज्यादा है, साडे उरे इस तरीके का माहौल है, साडे उरे इस तरीके का प्रथा चली आ रही है, असं 16 साल करनी ही करनी है, अगर दैट स्टेट इज डैम सीरियस, द स्टेट विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट
अल्टीमेटली आई मीन टू से यूनियन, अगर यूनियन सहमत है, राष्ट्रपति साहब परमिशन दिंदे ने बाय टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स केंद्र सरकार सर, देन पार्लियामेंट फिर उसको एक्सेप्शन क्रिएट कर सकती है, उस स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ लागू हो सकता है सर, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। पर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ लागू हो गया, इन फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। अगर पार्लियामेंट ने अलाउ करता या केंद्र ने अलाउ करता, राष्ट्रपति महोदय ने परमिशन दी थी, फिर भी भविष्य ਦੇ ਵਿੱਚ जाके उस चीज ਨੂੰ ओवररूल ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है। स्टिल द पावर लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टिल द पावर लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सर। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो जो समवर्ती सूची है सर, उस विषय ਤੇ संसद ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਸਰ। In case of conflict between two, who will win? Kendra will win. Union government will win, sir. Union will win, sir. उस तो बाद सर ठीक है जी, तो बाकी सारी रेजिडुअरी पावर्स, जो सारी बची शक्तियां ने सर, ठीक है, जिन्हों से बोल दिया रेजिडुअल पावर्स, वो किदे अधीन आंदियां ने? सेंट्रलिस्ट, स्टेटलिस्ट के कनकरेंट सेंटर। वो मैटर्स जो कितने नहीं लिखे गए, कल को कोई ऐसे मैटर्स ने, ठीक है ना, तो तीन लिस्ट बनिया हुई ने सर, फाइन, एक बनी हुई है स्टेट, एक सेंटर, एक कनकरेंट सर, एक सेंटर, एक स्टेट, एक कनकरेंट सर। सर कुछ ऐसे मैटर्स जो ना तो इत्थे आंदे ने सर, ना ही इत्थे लिखे हुए ने, ना ही इत्थे लिखे हुए ने, तो फिर वो रेजिडोरी लिस्ट विच कवर होंगे। वो कितने कवर होंगे? रेजिडोरी कितने कवर होंगे? हो रेजिडोरी। रेजिडोरी को पावर कितने कोल है सर? सेंट्रल लिस्ट को सर। उदाहरण तौर पे मैं तुहानू शायद पहले भी कर अपनी गल हुई सीगी, की गल हुई सीगी? गल करते हैं सर्विस टैक्स की, गल करते हैं सर्विस टैक्स की सर। तो सो सर्विस टैक्स 1994 1994 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 1994 सर्विस टैक्स आया, उस समय नरसिम्हा राव सॉरी सरकार ਸੀਗੀ, उस समय ਦੇ अपना डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उस समय वित्त मंत्री ਸੀਗੇ सर। उस समय ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ वैट नहीं सेल टैक्स लगदा ਸੀਗਾ सर, वैट 2005 ਵਿੱਚ ਆਇਆ सर, ठीक है, केवल वस्तुओं उपर टैक्स लगदा ਸੀਗਾ, सर्विसेज प्रदान ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ टैक्स नहीं ਸੀਗਾ। तो केंद्र सरकार सर्विसेज उपर टैक्स लगाना चाहती सी, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ। तो ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਖੰਗੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ क्या सर्विसेज उपर टैक्स लगाया जा सकता है, सर्विसेज उपर टैक्स लगाने का प्रावधान किसी भी लिस्ट में नहीं सीगा सर। फिर मनमोहन सिंह साहब ने उस समय रेजिडोरी पावर की वरतों करते हुए पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ सर्विस टैक्स लगाने का प्रावधान पेश किया सर। सर्विस टैक्स का ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਸੌਦਾ पेश किया सर, जो कि वाया उस समय ਦੇ बजट ਦੇ ਵਿੱਚ पेश ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, कोई स्पेशल बिल पारित नहीं कराया गया, बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, फ्रांस एक्ट पास कराया गया, फ्रांस बिल पेश किया गया सर। फिर उसके माध्यम ਦੇ ਰਾਹੀਂ सर्विस टैक्स ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ सर। तो किहदी वरतों की गई सी? रेजिडोरी पावर्स की वरतों की गई सी। कौन कर सकता है? केंद्र कर सकता है। तो एक होर प्लस पॉइंट केंद्र के फेवर च, एक होर प्लस पॉइंट केंद्र के फेवर च, ठीक है जी। उस तो बाद तो सारी बाकी बचियां शक्तियां है ना, जो कितने लिखी नहीं हुई है, कितने एन्यूमरेट नहीं है, कितने एनलिस्टेड नहीं है, कितने दर्ज नहीं हैं सर, ठीक है जी। और बाकी कोई इस तरीके की पावर, तो अल्टीमेटली पावर किहदे कोल है जनाब? वो केंद्र कोल है, ना कि स्टेट्स कोल है सर। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क सर, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सर जो गवर्न करता है बोथ सेंटर एंड स्टेट्स नु सर। उस तो बाद नेशनल एमरजेंसी सर, स्टेट अगेन एक होर पावर जो केंद्र के फेवर च, अगर केंद्र चाहे तो स्टेट विच एमरजेंसी लगा सकता है सर, उत्थे गवर्नर रूल लगाया जा सकता है सर। चंगी भली बनी सरकार नूं बर्खास्त किया जा सकता है। कुछ ऐसियां एक्सैप्शनल पावर्स ने एक्सैप्शनल सिचुएशंस दे विच, जिथे केंद्र नूं लगदा है कि जिहड़ी उत्थे दी स्टेट गवर्नमेंट है वो सही तरीके नाल फंक्शन नहीं कर पा रही, या उत्थे उस तरीके दे हालात नहीं हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एक्ट कर पावे। उदाहरण तौर पर लेटेस्ट मणिपुर दी एग्जांपल सर, कितना बड़ा एथनिक कन्फ्लिक्ट होया सर, उत्थे दे मुख्यमंत्री साहब ने दुखी होकर इस्तीफा ही मारता अपनी पोजीशन तो सर। हालात इन्ने बदतर से कि उत्थे इलैक्शन कराना संभव नहीं सीगा सर, जिस करके उत्थे राष्ट्रपति शासन लगाया गया मल्टीपल टाइम्स। पंजाब दे विच 1984 तो बाद जे हालातां नूं मद्देनज़र रखते हुए लग गया सर, जम्मू कश्मीर च मल्टीपल टाइम्स लग गया सर। तो चंगी भली बनी सरकार नूं भी गिराया जा सकता है, तो फिर उस समय केंद्र रूल करता है उस स्टेट दे विच। तो जो कि अगला प्लस पॉइंट है किहदे फेवर दे विच आंदा है जनाब? केंद्र के फेवर च आंदा है। असीं कह सकते हैं कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। असीं कह सकते हैं कि उस एंगल तो, उस मतलब नजरिए तो जो साडा देश है वो यूनिटरी इन नेचर है, नॉट अ फेडरल इन नेचर सर। Fine. So proclamation of the emergency under Article 352 can convert the federal structure into a unitary system temporarily, sir.
ਸੋ 6352 ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਟ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਟ 2 ਸੀਟਸ ਫਰੋਮ ਈਚ ਸਟੇਟ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਇਕੁਅਲੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਨੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਸਰ। So seats in the Rajya Sabhas are allocated on the basis of population, not the equal representation of the states. So Rajya Sabha ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਟ ਇਜ਼ allocated on the basis of population sir। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ। ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ नो। ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਸਰ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਰ, तो कदे कदे डेडलॉक सिचुएशन हो जाती है, गवर्नर साहब साइन करने तो मना कर देते हैं सर। अब मल्टीपल टाइम सिचुएशन होती, दिल्ली सरकार से लेफ्टिनेंट गवर्नर तो सर, तो दिल्ली विधानसभा बिल पास कर दी है सर। तो वी हैव सीन द मल्टीपल टाइम्स कदे कदे गवर्नर अड़ जाते हैं सर, ठीक है। पर नॉर्मली इतना हर केस नहीं होंदा। हुण रिसेंटली जो धार्मिक ग्रंथ ने उन्होंने बेअदबी ਲਈ एक जो पंजाब विधानसभा च मता पास होया, जो कानून बनाया गया है सर, वो काफी तुसीं देखो रोज किसी ना किसी चैनल ते डिबेट चल रही होंदी है। काफी सिख जथेबंदियां आ रही ने, कहते हैं सानू पसंद नहीं है, सानू मतलब साडे अनुकूल नहीं बनाया गया, सिख परंपरा के अकॉर्डिंग नहीं है। सरकार कह रही है भी इस तो सख्त कानून हो नहीं सकता इस दुनिया च, ठीक है ना। तो हर कोई अपना तर्क वितर्क दे रहा है सर, तर्क दे रहा है सर हर कोई अपना। तो गल ये है कि गवर्नर साहब ने उस जो बिल है उसनू साइन किया है, आंसर इज यस। कि केंद्र ने कुछ उस इंटरफेयर किया, केंद्र ने कुछ इंटरफेयर नहीं किया। वो कहते तुसीं देख लो भाई, अगर तुहानूं लगदा भी करवाना चाहिए करवा दो सर, ठीक है। मेरे कहने का मतलब की है, सो अल्टीमेटली गवर्नर वैसे रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ नहीं करते, पर कदे कदे पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके की होंगी है, चाहे वो केजरीवाल की सरकार से टाइम ऑफ दिल्ली सर रहिंदा, दिल्ली सर केजरीवाल की सरकार वाली डेडलॉक रहिंदा सीगा बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द मुख्यमंत्री केजरीवाल सर। तो कितना कहीं टेंशन बनया रहिंदा सीगा थोड़ा बहुत, पर अदरवाइज रूटीन च नहीं होगा। तुसीं कदे केरल का इन्ना सुनने को नहीं मिलता, कदे तमिलनाडु का, कदे सिक्किम का, कदे मणिपुर का, कदे मध्य प्रदेश का, कदे उड़ीसा का, कदे बिहार का, ठीक है। पर हाँ कुछ कदे कदे हो जाता है, पर अल्टीमेटली गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, केंद्र। जो बिल पारित करती है विधानसभा साइन किसने करना है, गवर्नर ने। कि गवर्नर वीटो पावर यूज कर सकता, करेगा कदों यूज करेगा, जो केंद्र कहेगा उसने यूज करने लिए सर, फाइन। उस तो बाद तो गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स प्लेजर सर। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, ठीक है ना, तब तक गवर्नर अपनी सीट पे रहेगा सर। जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तो गवर्नर अपनी सीट पे नहीं रहेगा। पहला पॉइंट सर ये ना, मतलब लिखना एक होर चीज होंदी है, इंटरप्रेट करना होर चीज है। लॉ लिखिया होया एक होर चीज है, उसको इंटरप्रेट करना एक अलग स्किल है, एक अलग नॉलेज है सर।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹੋਦਯ ਦੇ ਪਲੇਜਰ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਿਸਟਰ ਵਾਈ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੋਦੀ ਉਹੀ ਡਿਸੀजन ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। तो कुल मिला के वो जाहिर जी गल है, अगर मंत्रिमंडल कह देगा है ना, तो जाहिर जी गल है कि उस गल नूं मोड़िया नहीं जा सकता। तो अल्टीमेटली सानू सबनूं पता है कहण नूं सारे मंत्री ने, मुख मंत्रिमंडल दे विच मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने सर, पर सबनूं पता कि इस समय जो सरकार है वो किहनां दी है, मोदी साहब, अमित शाह साहब होने दी। अगर जे कोई उन्होंने गल कहती तो मुड़ नहीं सकती, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है उस साइन ना होवे सर। तो यानी कि मंत्रिमंडल तो मता पास होया लो सर, वो तो फॉर्मेलिटी होंदे, मिनट 2 लगते हैं मता पास करते सर, वो तो बस सबके साइन ही कराने होंदे ने। किसी मंत्री की इन्नी हिम्मत थोड़ी दूसरों ओवररूल कर देगा सर। हर सरकार च टॉप के 3-4 मंत्री होंदे ने जिन्हां दे कदे मुड़दे नहीं होंदे सर। फाइन, ये तुसीं जदों मर्जी चक के देख लो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार सीगी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री से, इंदिरा गांधी ने कोई मता पास करता, अगर मंत्रिमंडल दे विच कहता भी आ चीज पास करनी, तो उदी हुंदी सीगी। किसी मंत्री की हिम्मत थोड़ी उसनूं ओवररूल कर देगा सर। तो लॉ से इदां लिखिया जांदा है कि मंत्रिमंडल निर्णय लैंदा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में निर्णय लैंदे ने सर। नो डाउट वो लैंदे ने, नो डाउट उन्हें साइन होंदे ने, पर कितना कितनी वो फॉर्मेलिटी हो जाती है जो टॉप गवर्नमेंट की जो टॉप लीडरशिप होंदी है, जो टॉप के 3-4 मंत्री होंदे जो कोई डिसाइड कर लेंदे ने, तो वही डिसीजन बन जाता है उन्होंने पूरा दा सर। ठीक है ना। पर कि हाँ लीगल तौर पर गल कहांगे कि मंत्रिमंडल देखते आंसर इज यस, कि वो सारे साइन करते हैं, आंसर इज यस, कि वो फाइल पास होके राष्ट्रपति के साथ को जाते, आंसर इज यस, कि राष्ट्रपति महोदय उसी गल पे एक्ट करते हैं, कहने राष्ट्रपति महोदय एक्ट ऑन द एडवाइस एंड एड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आंसर इज यस, कि राष्ट्रपति महोदय उदा ही काम करते हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल उन्होंने कहा जाता है, आंसर इज यस, कि सरकार द्वारा लोगों द्वारा डायरेक्टली चुनी गई है, आंसर इज यस, कि लोक सभा दे विच वो द्वारा लोगों द्वारा डायरेक्टली चुनिया गया बहुमत है सर। ठीक है जी, लोगों ने बहुमत दिता उन्होंने, तो राष्ट्रपति फिर लोगों का दिते हुए जिहड़ा जनादेश है उसनूं ओवररूल किवें कर सकते हैं सर। द पॉइंट इज वेरी सिंपल सर। फाइन, सो अल्टीमेटली कंक्लूड में यह गल करना चाहना, लॉ नूं पढ़ना होर तरीके दा हुंदा है, इंटरप्रेट होर तरीके दा हुंदा है। ठीक है, तो वही लिखिया पे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, पर तुसीं इहनूं ऐ मान के चलो कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ सरकार, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट सर। सरकार कौन है, आई टॉप 4-5 ही होंदे ने सर, चाहे राजनाथ सिंह साहब हो गए, चाहे अमित शाह साहब हो गए, चाहे प्रधानमंत्री साहब हो गए सर। फाइन, वही टॉप 4-5 ने सर, उन्होंने प्लेजर है सर। ठीक है जी, चलो एनी हाउ, पर मैं संविधान पढ़ा रहा, मैं तुहानूं इदां मतलब कि इन्ना कैजुअली बोलना नहीं चाहता, पर हाँ संविधान च लिखा हुआ ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, जो राष्ट्रपति महोदय चाहणगे। रियलिटी दे विच क्या होंदा है, राष्ट्रपति महोदय उदां ही करते हैं जिवें मंत्रिमंडल करन नूं कहंदा है सर। इट इज एज सिंपल एज दैट सर। तो कुल मिला के अगर गवर्नर ने उत्ते गवर्नर बनया रहना है तो सरकार के अनुकूल काम करो, अगर सरकार के अनुकूल काम नहीं करोगे तो तुसीं गवर्नर नहीं हो अगले मिनट, बस गल इन्नी की है पंजाबी च। फाइन, उस तो बाद सो दिस क्लियरली शोज कि केंद्र पावरफुल है, केंद्र पावरफुल है। जो स्टेट के ऊपर एक हैंडल आया हुआ है किने पॉइंट किया हुआ है, अपना केंद्र ने सर, सेंटर ने सर, जो डे टू डे फंक्शन इंटरफेयर नहीं कर रहा। पंजाब विधानसभा बिल पेश करना चाहती है, करे, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, उन्हें साइन कर देंगे, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं सर। फाइन, क्योंकि सरकार जनता ने चुनी है, अगर उन्होंने लगता है भी सरकार को लगता करना चाहिए तो उन्होंने देखना है, तो फिर रूटीन एक्टिविटीज इंटरफेरेंस नहीं रहता सर। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तुम कदों भी गवर्नर को इदा नहीं देखोगे पोलिटिकल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम कभी गवर्नर रैलियां करते देखे अज तक? हमेशा एक डेकोरम बना के रखा जाता भी राष्ट्रपति की सीट नूं और गवर्नर की सीट नूं पॉलिटिसाइज ना किया जाए सर, पॉलिटिसाइज ना किया जाए सर। रिसेंटली की होया, स्टार्टिंग च भगवंत मान साहब की सरकार बनी ना, तो गवर्नर साहब एक तो जगह दौरे करे आए। भगवंत मान ने दौरा करना होंदा सी, किते जाना होंदा सी, डीजीपी नूं फोन करना सी, डीजीपी साहब नाल चलो मेरे, वो कहते डीजीपी साहब तो गवर्नर साहब नाल गए हुए ने, एक बार होया, 2 बार होया, 3 बार होया। भगवंत मान कहता मुख्यमंत्री मैं आ यार, होगा जनता ने मैनू चुन के भेजे कि उन्होंने चुन के भेजे, मैं जवाब दिया वो जवाब दे, लोकतंत्र इधर नूं है कि उधर नूं है। मैं डीजीपी नूं फोन मारदा, डीजीपी नहीं मिलता मैनू, मैं चीफ सैकटरी फोन करना, चीफ सैकटरी अवेलेबल नहीं है। रीजन बीइंग वो गवर्नर साहब नाल उत्ते हड़ आए हुए ने जी, पंजाब तो दौरा करन गए ने, और कहंदे मेरा जाना बनदा यार, पहले लोग मैनू गालां कड्डणगे भी मुख्यमंत्री नहीं आया। तुसीं मेरी गल समझ आ रही कि नहीं? तो तां फिर कितना किते गवर्नर ने एक स्टेप पीछे होया भी इन्ना ज्यादा एक्टिव ना होवो। हाँ, स्टेट दे विच ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਸਾਈਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋ ਮਾੜਾ ਜਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ,
गल भी अल्टीमेटली सही है, जनता ने फरमान उन्होंने दिता 5 साल का सर, तो अपना 5 साल पूरे निभाण गए सर वो। सो कहने का मतलब की है, तो अल्टीमेटली की इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, अ गवर्नर इज इंपॉर्टेंट लिंक सर। फाइन। सो तो मैं फिर बस एक लाइन कंक्लूड कर रहे हैं दोबारा, लिखिया हो प्रेजेंट होया, पर प्रेजिडेंट ऑलवेज एक्ट ऑन द एडवाइस एंड ऑन द एड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति महोदय वही करते हैं जो मंत्रिमंडल करने को कहते हैं, गल खत्म सर। फाइन। तो कुल मिला के गवर्नर तब तक टिके रहने जब तक केंद्र सरकार की इच्छा है, अदरवाइज नहीं सर। फाइन। सो राजपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ते राष्ट्रपति की खुशी प्लेजर दौरान अहुदा संभालते हैं सर, जो केंद्र और राज्य विचकार एक महत्वपूर्ण कड़ी वजों काम करते हैं सर। उस तो बाद यूनिफाइड एंड ऑल इंडिया जुडिशरी सर, यूनिफाइड एंड ऑल इंडिया जुडिशरी सर। सर कानून बनाती है केंद्र, जो पार्लीमेंट चो पास होंगे ने, और सारिया जो कोर्ट्स का मेन काम की होंगे, कानून को इंटरप्रेट करना, उसके ऊपर जजमेंट देनी, कानून को इंप्लीमेंट कराना सर। जो कानून बनया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना कोर्ट का काम है सर। अगर लिखा होया भी मर्डर करने की सजा फॉर एग्जांपल फांसी है या उम्र कैद है, कोर्ट का काम होंगे उस जो बंदा गिल्टी है उसको फांसी या उम्र कैद की सजा देना। इन शॉर्ट जो लॉ च लिखा होया उसको एग्जीक्यूट कराने का काम किहदा होंगे, कोर्ट का होंगे सर। इन शॉर्ट जो कानून च लिखा हुआ है उसको लागू कराने का काम किहदा होंगे, कोर्ट का काम होंगे। कोर्ट का अगर एक लाइन च फंक्शन वाला काम की है, टू एग्जीक्यूट द लॉ, टू इंप्लीमेंट द लॉ, टू इंश्योर दैट कि जो लॉ इंप्लीमेंटेशन है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही सर, ये इंश्योर करना सर। जो अपना काम है वो सारा कुछ कानून के अनुकूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है सर, आई है ना सर। पर गल ये है कानून बनाता कौन है सर? सर मोस्ट ऑफ द अच्छे खासी पावर्स किहदे कोल ने, केंद्र कोल ने सर। चाहे वो कंकरेंट लिस्ट की गल कर लिए, चाहे फर्स्ट यूनिट लिस्ट की गल कर लिए सर। कानून बनाया केंद्र ने, सारियां स्टेट्स इंप्लीमेंट होया, सारियां स्टेट्स विच इंप्लीमेंट होया। अगर कानून बनाता कि 18 साल लड़की की मैरिजेबल एज है, ये 18 साल राइट टू वोट है, तो सारियां स्टेट्स भी फॉलो कर रही ने। कानून किने बनाया है? केंद्र ने सर। लागू कितने हो रहा है? पूरे पूरे देश के विच हो रहा है सर। तो सेम ऑल इंडिया सर्विसेज की गल कर लो, चाहे आईएएस आईपीएस आईपीएस आईएफएस की गल कर लो सर। भर्ती की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। चाहे डिप्लॉय स्टेट के विच नहीं, अगर केंद्र चाहे कि आप कहने पंजाब का चीफ सेक्रेटरी बदल सकते हैं, बदल सकते हैं सर। क्यों कितने डेपुटेशन भेज सकते हैं, भेज सकते हैं सर। वैसे नो डाउट भर्ती कौन करता है? केंद्र। रिमूव भी कौन कर सकता है? केवल केवल केंद्र। क्या स्टेट को रिमूव करने की पावर होंगी है? आंसर इज नो सर। तो यानी कि इमेजिन करो जिन्ने सारे ब्यूरोक्रेट्स वक्रे वक्रे स्टेट्स काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उन्होंने किहड़े रूल्स अकॉर्डिंग चलना पैंदा? केंद्र के रूल्स अकॉर्डिंग चलना पैंदा सर। किन्हां दे अधीन इंडायरेक्टली काम कर रहे होंगे ने? केंद्र के अधीन काम कर रहे होंगे। अगर वो केंद्र के अनुकूल काम नहीं करेंगे, क्या उत्ते काम कर सकते हैं? उस सीट पर नहीं कर सकते सर, अगले मिनट नहीं कर पाएंगे सर। चाहे कोई आईएएस है चाहे आईपीएस है सर। तो जेडे आईएएस आईपीएस जी बॉडी है ना सर, तुम मान के चलो स्टील स्ट्रक्चर है किसी भी सरकार का सर, उस तो मेन ढांचा है वो भी किहदे कंट्रोल च है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली केंद्र के कंट्रोल च है। किहदे कंट्रोल च है? केंद्र के कंट्रोल च। अपॉइंट कौन करता है? केंद्र। नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। एग्जाम कौन कंडक्ट करांदा है? केंद्र, थ्रू यूपीएससी, थ्रू मेरिट बेस। रिमूव कौन कर सकता है? केवल केंद्र। केड़े रूल्स लागू होंगे ने? ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स लागू होंगे ने, सेंट्रल सर्विसेज रूल्स। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो कहने का मतलब की है उन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहे हैं? मेन ब्यूरोक्रेट्स नो केंद्र कंट्रोल कर रहे हैं। तो की ये एक होर पॉइंट नहीं है केंद्र के फेवर दे विच, जिसमें कह नहीं सकते कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है एज कंपैरिजन टू फेडरल स्ट्रक्चर सर। असं ये नहीं कह सकते कि इस तरीके के सिस्टम देख समय लगता है भी इंडिया यूनिटी टच ज्यादा है, इंडिया की गवर्नमेंट दे विच यूनिटी टच ज्यादा है सर। सो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सर एंड अ कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज सर। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब कि अल्टीमेटली सारे की ने सुप्रीम कोर्ट दे अधीन ने। ये सारे केड़ा कानून फॉलो कर रहे हैं? चाहे यूनियन लिस्ट वाला कानून है चाहे कंकरेंट लिस्ट वाला कानून है, जिहदे केंद्र के अपर हैंड है सर। केंद्र कानून ने बनाया, सारिया हाई कोर्ट्स उदे इंटरप्रेट कर रहे हैं सर, एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर। चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज की गल करिए सर, ठीक है ना। इस तरीके नाल की हुंदा, ये सारियां चीज़ां किहनूं कंट्रोल नूं स्ट्रेंथन करदियां ने? केंद्र के कंट्रोल नूं ज्यादा शक्तिशाली बनाउंदियां ने सर। फाइन। सो एक सिंगल एकीकृत न्यायपालिका ते सांझियां ऑल इंडिया सेवावां आईपीएस आईएएस आदि केंद्रीय नियंत्रण नूं मजबूत करदियां हन सर। ठीक है जी। सो लास्ट पॉइंट सर। फाइन। सो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सर, सीएजी। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र, यानी कि राष्ट्रपति साहब सौंच दे रहे सर।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ। ਕੀ ਸੀਏਜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਯੈਸ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੀਏਜੀ। ਅਪਾਇੰਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਟੇਟ ਦਾ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ। ਅਪਾਇੰਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੀਈਸੀ। ਅਪਾਇੰਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਐਮਐਲਏ ਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਆ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ। ਫਾਈਨ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕੁਝ ਸੀਟਸ ਐਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਨੇ ਸਰ। ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਲੀ ਯੂਨਿਟਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਸਰ। ਨਾਓ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਕਲੂਡ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਬੋਥ ਯੂਨਿਟਰੀ ਐਂਡ ਅ ਫੈਡਰਲ ਟੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਕ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੈਮੀ ਫੈਡਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਸੈਮੀ ਫੈਡਰਲ ਹੈ ਬॉस, नो डाउट इन दैट बेटा। ठीक है, these are the few points which shows कि India is a unitary as well as a federal sir। ठीक है। सो देयर इज नो कंफ्यूजन। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਮੀ ਫੈਡਰਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਸਰ, ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।